हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो मैं बात करूंगी कुछ बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स के बारे में। एज यू ऑल कैन सक्सेसफुली यूज दिस स्किल्स फॉर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स एंड फॉर योर फ्रेंड्स। तो जस्ट फॉर फर्स्ट एड स्किल्स जस्ट फॉलो द रूल ऑफ 3 C's and 3 P's. And what are these 3 C's and 3 P's? So 3 C's are check, call and care, and the 3 P's are preserve life, prevent deterioration and promote recovery. तो बच्चों, सबसे पहले तो ये बात जरूरी है कि अगर हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमें किसी फर्स्ट एड की जरूरत है या हमारे किसी अपने को फर्स्ट एड की जरूरत है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, स्ट्रांग बनना है। क्योंकि अगर हम घबरा जाते हैं तो जनरली हम घबराहट में गलतियां कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रांग बनना है और हमें देखना है हम क्या पॉसिबल स्टेप्स हैं कि हम उसकी रिकवरी के लिए ले सकते हैं। So before we will talk about the first aid skills in brief, we will concentrate on first aid kit. Yes, we all must have a first aid kit in our home, in our cars, and while we are traveling. So you can purchase first aid kit from local drug store, or you can also make your own. Whether you buy a first aid kit or put one together, make sure it has all the items you may need. Now we will talk about how to prepare first aid kit at home. Just prepare a checklist of medicine which we required and get them from the drug store and assemble them at home. This is my first aid box, as I use this basket for my first aid kit. In this kit I use this packet for cuts and wounds. In this packet I have all medicine which are used for treatment of cuts and wounds. I have Dettol, bandage, ointment, gauze tape, scissors. This is crepe bandage used in case of sprain. I have a separate pack for fever, headache, vomiting, loose motions medicine, and these are ORS, Eno, Hajmola, pain reliefs, antiseptics, balm, fever, thermometer. You can also include items which your healthcare provider may suggest. I have also included some emergency number in this kit so that I can easily access in case of emergency. So this is my first aid kit. First aid for fever. So these are normal body temperature ranges, and if body temperature rises above these level, we have fever. So in case of fever, just try to take rest as much as possible, wear light and comfortable clothes, try to keep your body hydrated, and if discomfort continues, take paracetamol and check temperature after every 2 hours, and if temperature rises, keep cool packs on hand under your armpit. And if discomfort continues and your temperature rises above 103 degree Fahrenheit, then call your doctor immediately. First aid for diarrhea. Diarrhea is a common problem that occurs when your bowel movement become very loose and frequent. So during diarrhea, take proper rest and avoid dehydration. So drink plenty of water and take light food just like toast, khichdi, banana, probiotic yogurt, and you can also take ORS. And if you have problem of vomiting along with diarrhea, then consult your doctor. First aid treatment for nose bleeding. Nosebleeds can be frightening, but they are not usually a sign of anything serious and can be treated at home very easily. Generally चेंज इन ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से हमें नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि हमें नोज ब्लीडिंग जल्दी रिपीट हो रही है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. सो फॉर ट्रीट नोज ब्लीडिंग, जस्ट सिट प्रॉपरली, लीन फॉरवर्ड योर बॉडी, यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू पिंच योर नोस्ट्रिल शट, ब्रीथ थ्रू माउथ एंड कंटिन्यू टू पिंच फॉर 10 to 15 minutes. और हाँ, हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमें अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है, हमें अपने सर को पीछे की तरफ नहीं ले जाना है, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड हमारे विंड पाइप में जाकर उसको चोक कर सकता है.
So, and if bleeding continues for longer than 20 minutes or bleeding is heavy and you have lost lot of blood, seek medical advice immediately. And avoid lifting, bending and straightening your body at least for 48 hours after nose bleeding. Avoid blowing your nose, keep your mouth open to sneeze, avoid rubbing or picking your nose, and take proper rest. Elevate your head for sleep. फर्स्ट एड फॉर चोकिंग. कभी कभी हम खाना बहुत जल्दी में खा रहे होते हैं या खाते हुए बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो हमारा खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. बट समटाइम्स ये चोकिंग लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. सो बी केयरफुल. अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें चोकिंग हो गई है और हमें बात करने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और हमारी स्किन ब्लू पड़ रही है, तो हमें जस्ट ट्राई टू कफ फॉर आउट द ऑब्स्ट्रक्शन. और अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसको चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जस्ट गो फॉर हेल्प. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एंकरेज हिम और हर टू कफिंग. और अगर उससे आराम नहीं होता है तो हमें उसको पीठ पर उस पर्सन को आगे की तरफ झुकाना है और पीठ पर 5 ब्लोज देने हैं दोनों शोल्डर के बीच में. तो ब्लोज देने के लिए हमें क्या करना है, पर्सन को सबसे पहले आगे की तरफ झुकाना है और दोनों शोल्डर के बीच में 5 टैप्स देने हैं और कोशिश करनी है कि हम जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो बाहर आ जाए. अगर ऐसे करने से भी प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, तब हमें हैमलिक मैन्यूवर प्रोसीजर को अप्लाई करना है. और ये प्रोसीजर हम कैसे अप्लाई करते हैं, आप देखिए. Stand behind the position casualties legs apart. Place your leg in between. Position fist above navel. Bend casualty forward slightly. Grasp your fist. Thrust hard and quick into abdomen. और in case आप अकेले हैं, then you can use chair or any object to apply this procedure. और अगर इसके बाद में भी पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, तब हमें इमीडिएट डॉक्टर को कॉल करना है. इस चोकिंग से प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए और हमें छोटा छोटा बाइट अच्छे से च्यू करके हमें खाना खाना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर स्प्लिंटर. जनरली हमें पार्क में या कहीं वुडन सरफेस पे से हमारे हाथों में या पैरों में बुशेस से स्प्लिंटर हमारे लग सकता है. तो उसको रिमूव करने के लिए जस्ट हमें एक स्टेलाइज ट्वीजर चाहिए, जिसे इस ट्वीजर को हम अल्कोहल से भी कर सकते हैं या फिर गर्म पानी से स्टेलाइज कर सकते हैं. अगर हमारा स्प्लिंटर बहुत छोटा है तो सिंपल टेप की हेल्प से हम कर सकते हैं, और अगर बड़ा है तो हम एक स्टेलाइज ट्वीजर लेंगे और उसको ट्वीजर के हेल्प से निकाल लेंगे. उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास और टॉर्च का यूज़ भी कर सकते हैं अगर बहुत छोटा है. उसको निकालने के बाद हम हाथों को अच्छे से सोप से वॉश करेंगे और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएंगे. अगर निकालने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि स्टिल देयर इज समथिंग और पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो हम डॉक्टर को कॉल करेंगे. फर्स्ट एड फॉर bee sting. For remove the stinger, scrape the stinger away with a fingernail or credit card. But do not pinch the stinger with your fingers or tweezers. By this, you may force more venom into the sting. After that, clean with soap and water. Use ice to reduce swelling. And if there is lot of pain, you can take any painkiller. फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स. अगर कट बहुत माइनर है तो सिंपल हम उस एरिया को क्लीन करेंगे हॉट वाटर से और ड्राई करके बैंडेज लगा लेंगे. और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इन केस अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे बाय डायरेक्ट प्रेशर, बाय यूजिंग अ स्टेलाइज पैड और अ क्लीन क्लॉथ, और ट्राई टू एलिवेट द वुंड अबव द हार्ट. बट अगर ब्लीडिंग हमारी स्टॉप नहीं हो रही है तो हम तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे. उसके बाद हम चेक करेंगे डायरेक्ट प्रेशर से अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो हम उस एरिया को हॉट वाटर से क्लीन करेंगे, देन एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे और बैंडेज कर देंगे उस एरिया का. लेकिन अगर हमें लगता है कि वुंड हमारा बहुत कट या वुंड जो है वो बहुत गहरा है और हमारी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है या किसी चेहरे पर आ गया है हमारे, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए.
फर्स्ट एड फॉर बर्न. फॉर ट्रीटिंग बर्न आपको क्या करना है, जस्ट होल्ड द बर्न एरिया अंडर द कूल टैप रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. और अगर रनिंग टैप वाटर नहीं है तो हम हैंड को डिप करके भी रख सकते हैं. डोंट अप्लाई आइस, और हमें आइस वाटर भी नहीं यूज करना है, जस्ट रनिंग कूल वाटर. डोंट रब ब्लिस्टर. डोंट अप्लाई बटर, टूथपेस्ट, ऑयल विच कैन कॉज इन्फेक्शन. बस हमें क्या करना है, उसको 10 to 15 मिनट्स के बाद हम उसको क्लिंग रैप या कोई नॉन स्टिक बैंडेज से लूजली रैप कर सकते हैं. और अगर हमें लगता है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है तब हम उस एरिया को क्लीन करके हम ऑइंटमेंट लगाएंगे और लूज बैंडेज करेंगे. और बैंडेज को हम ऑल्टरनेट डेज पे चेंज करते रहेंगे. उसके बाद और पेन के लिए हम पेन किलर्स लेंगे. And seek medical advice if burns to face or genital, and if there is all swelling, redness अगर बढ़ रही है या उस इन्फेक्शन आपको लग रहा है बढ़ रहा है तो हम तुरंत डॉक्टर को से कंसल्ट करेंगे. फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स. Sprain, strains and fractures can happen during sports or other physical activities. When injury happens, there can be some bruising and swelling. However, too much swelling can cause fracture. We use ricer first aid for sprain. Rest. After injury, stop moving an injured limb. Movement can increase swelling and slow healing. Call your doctor if you think it's fracture. Ice. Use an ice pack wrapped in cloth to reduce pain and swelling around the injury. Compress. Use crepe bandage to firmly but not too tightly around, above and below the wound. Use this method for wrapping crepe bandage. Keep the injured area elevated by using pillow. Referral. If there is too much swelling or pain, consult your doctor. In the first 48 to 72 hours, don't use treatment like heat or hot rubs, and also avoid activity and massage. How to prepare ice packs at home. वैसे हम मार्केट से रेडीमेड आइस पैक्स भी परचेज कर सकते हैं, बट इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि हम घर पे आइस पैक कैसे बनाएंगे. वी कैन यूज कॉर्न सिरप, रबिंग अल्कोहल, टेबल सॉल्ट, डिश एंड वेट स्पंज फॉर मेकिंग आइस पैक्स. आइस पैक बनाने के लिए हम किस तरीके का जिपलॉक बैग यूज करेंगे और उसमें हम उसको हाफ पानी से फिल कर देंगे. पानी डालेंगे और उसके बाद उसमें हम 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे. सॉल्ट ऐड करके फिर हम इसको लॉक कर देंगे बैग को और चेक कर लेंगे कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है. अगर कहीं से लीक करता है तो हम इसमें इसको डबल पैक कर लेंगे, मतलब एक और पॉलीथीन या किसी चीज़ में हम रख लेंगे और फिर इसको हम फ्रीजर में रख देंगे और जब भी हमें ज़रूरत हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. So see, our cool pack is ready and we should not directly apply it on the problematic area. Just wrap it in a clean hand towel or in any cloth and then use it on problematic area. Now the question is when we use cool packs and when we will use hot packs. As a general rule, ice pack used for acute injury or pain along with inflammation and swelling, while heat uses for muscle pain or stiffness. Time for the task. Prepare a first aid kit at your home and share the pic. At last, I want to say, as we all know, COVID-19 cases are increasing day by day. And we all know prevention is better than cure. So in today's scenario, just follow these rules. Use hand sanitizer and mask if you are experiencing flu-like symptoms. Maintain social distancing. Keep washing your hand regularly. And stay home, stay safe. Bye.